Hello everyone, I'm Dr. Smriti Ojha and today with this video I'll discuss liquid dosage forms. Here I'm going to discuss and explain about part 1 of liquid dosage form. First, about the definition of liquid dosage form. As we all know, normal state of matter is solid, liquid and gases. So in general what are liquid dosage form? Liquid dosage form in general वही dosage form है जो liquid state of matter में present है, जो liquid state of matter में है and they are dosage form like जिससे हम अपनी drug को deliver कर सकते हैं in proper dosage, वो liquid dosage form है. As per the definition, it is the liquid form of a drug dose. It is a liquid form of a drug dose for administration or consumption. Liquid form of a drug dose for administration or consumption. Route of administration of these doses form may be oral, intravenous, intramuscular, cutaneous और subcutaneous. हम इसको oral route से भी consume करते हैं. IV intravenous route का मतलब है directly intravenous veins में direct inject करना, और muscular means directly muscles में हम इसको inject कर सकते हैं. They are parenteral preparations. Cutaneous and subcutaneous, cutaneous layer और subcutaneous layer. Apart from the oral, all other dosage form which are written here like IV, IM, cutaneous and subcutaneous, ये चारों dosage form आपके parenteral dosage form में आते हैं. Now, I told you about the liquid dosage form, but what are the different types of dosage form? A general class of different types of dosage form include solid dosage form. इसका best example है tablet या capsule. Liquid dosage form, the example is syrup, emulsion, suspensions. Semi-solid dosage form. Semi-solid dosage form का वीडियो हम आपको शेयर कर चुके हैं. पेस्ट, जेल, ऑइंटमेंट, ये सारी प्रिपरेशंस आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएगी. एंड द लास्ट वन इज गैसियस डोजेस फॉर्म. जो गैसियस फॉर्म में स्पेशली एरोसॉल प्रिपरेशंस, जो गैसियस डोजेस फॉर्म में डिस्पेंस हो रही हैं, दे आर गैसियस डोजेस फॉर्म्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स. जो हमारे कोर्स में लिक्विड डोजेस फॉर्म में जीपैट के सिलेबस में या बी फार्मेसी के सिलेबस में लिक्विड डोजेस फॉर्म में, उस डोजेस फॉर्म को इन जनरल दो डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. द फर्स्ट क्लास इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड द सेकेंड क्लास इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म. मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जैसा नाम में है, मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब है सिंगल एंड द फेजिक इज फॉर फेज. जिस लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है. सिंगल फेज का मतलब है कि कोई दूसरा सेपरेबल फेज इस डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. दे आर ईदर कंप्लीटली मिसिबल और कंप्लीटली soluble phases. And the second is biphasic liquid dosage form. Biphasic liquid dosage form, you can say bi मतलब दो, at least biphasic dosage form में दो phases है, दो अलग अलग phases है. दो अलग अलग phases क्या हो सकते हैं? एक phase solid, एक phase liquid हो सकता है, या दोनों ही phase आपका immiscible liquid का हो सकता है. Now coming to the examples of monophasic dosage form. Monophasic dosage form का एक example है syrup. सिरप ऑब्वियसली सुक्रोज का बना हुआ आपका सिस्टम है, डोजेस फॉर्म है. मिक्सचर्स, लिंक्टसेस का प्रिपरेशन है, एलेक्सर्स, पैरेंटल प्रिपरेशंस, ये आपके एग्जांपल है मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के जो ज्यादातर इंटरनली यूज होते हैं. एंड द सेकेंड इज एग्जांपल्स जो कि हम ज्यादातर एक्सटर्नल यूज के लिए ही रखते हैं. दे आर गागल करना, माउथ वॉश, ओरल कैविटी को सिर्फ डिओडोराइज करना, वॉश करना, नेजल ड्रॉप्स, लोशंस, ईयर ड्रॉप्स. दीज आर ऑल मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स विच आर जनरली यूज्ड एज एक्सटर्नल प्रिपरेशन. नाउ अगर हम बाईफेजिक डोजेस फॉर्म की बात करें तो there are two types of biphasic dosage form. One is suspension and the other one is emulsion. Suspension में दो जो phases हैं उनमें एक phase liquid है और दूसरा phase finally divided solid है. Liquid phase को हम इस बोलते हैं internal phase और finally divided solid जो उसमें dissolve नहीं है, सिर्फ dispersed है, उसे बोलते हैं external phase. Emulsion की बात करें तो इसमें दोनों ही phase liquid है.
दोनों ही फेज लिक्विड है पर वो लिक्विड आपस में मिक्सेबल नहीं है. वन लिक्विड इज यूज्ड एज कॉन्टिन्यूअस फेज और सेकेंड लिक्विड इज यूज्ड एज डिस्पर्स्ड फेज. इमल्शन में कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर डिस्पर्स्ड फेज ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स या ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्पर्स्ड रहता है. दिस इज इमल्शन. अगेन मेन जो दो क्लासेस है वो तो मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म की है. मोनो मीन सिंगल फेज प्रेजेंट होना, जिसमें कि सारा का सारा आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, कि नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे इन फेजेस को. और बाईफेजिक में क्या है कि दो फेज एग्जिस्ट करते हैं, जिसको एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन या कोई और सुटेबल फिजिकल मेथड से हम सेपरेट भी कर सकते हैं. इवन नॉर्मल स्टोरेज में भी ये फेजेस सेपरेट हो जाते हैं. वी नीड टू शेक इट बिफोर यूज. Now, as I told you, monophasic means only one phase is there. That is liquid phase. जो एक phase हमें मिलता है वो भी liquid phase है और single liquid phase है. जैसे कि आपका emulsion में दो liquid है, but monophasic में सिर्फ single liquid है जो immiscible है. And the examples are here. Biphasic dosage form. A biphasic liquid consists of two phases which cannot form a homogeneous mixture. Monophasic एक homogeneous mixture भी बनाता है and normally they are present in molecular form. बाईफेजिक में हेट्रोजीनियस सिस्टम है. हेट्रोजीनियस मतलब एक से ज्यादा फेजेस प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली उस सारे सिस्टम को, उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बोलते हैं. द टू फेजेस आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड स्टेबलाइज्ड विद सर्टेन केमिकल्स. हेट्रोजीनियस है और डिस्पोज्ड फेज है, तो we need some stabilizing agents. Stabilizing agents are emulsifying agent और suspending agent और wetting agent. इस तरह से stabilizing agents, जिसको कि कुछ तरीके के chemicals हैं, chemical classes में हम कह के बोल सकते हैं, they are used to stabilize biphasic liquidosis form. There are again two major types of biphasic class. The first type is suspension and the second type is emulsion. When solid phase is dispersed phase and this phase is disposed in a liquid phase, the dosage form is called suspension. जब एक फाइनली डिवाइडेड सॉलिड को हम लिक्विड में डिस्पर्स कर रहे हैं, लिक्विड फेज में डिस्पर्स कर रहे हैं, तो उस डोजेस फॉर्म को हम बोलते हैं सस्पेंशन. एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज होता है सस्पेंडिंग एजेंट. द सेम फॉर द इमल्शन. दोनों फेज लिक्विड है, एक लिक्विड फेज दूसरे लिक्विड फेज में अगर डिस्पर्स हो, एक फेज कॉन्टिन्यूअस फेज है और दूसरा फेज ड्रॉपलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे स्फीयर के फॉर्म में, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर डिस्पर्स हो रहा है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्पर्स हो रहा है, देन द डोजेस फॉर्म इज इमल्शन. अगेन इमल्शन भी दो तरीके का होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन. इनको आप डिटेल में पढ़ोगे अपकमिंग पार्ट 4 में. Now the various preparations of monophasic dosage form. Monophasic dosage form of either true solution और colloidal solution. या तो true solution है या colloidal solution है. All these consist of single phase and may either aqueous or non-aqueous solvent. इसकी first example है gargle. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है गागल. डेफिनेशन क्या है गागल की? गागल्स आर एक्वस सोल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन. जैसे कि हम सबने गागल कभी न कभी यूज किया है. नॉर्मली थ्रोट तक थोड़ा सा गागल को सबसे पहले हम इंटरनल यूज के लिए, ये नहीं है, इसको स्वेलो नहीं करते हैं. तो जो थ्रोट इन्फेक्शन है, ओरल म्यूकोसा, ओरल कैविटी में अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वो थ्रोट तक स्प्रेड है, तो गागल से को यूज करके हम उसको फर्स्ट सैनिटाइज कर सकते हैं, मीन्स इन्फेक्शन को किल कर सकते हैं. सेकेंड, हाइजीन पर्पज से पूरे एरिया को क्लीन रख सकते हैं. तो प्रिवेंट और ट्रीट सो थ्रोट इन्फेक्शन, अगर थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करना है या प्रिवेंट रखना है तो गागल्स यूज होंगे. दे आर यूजुअली अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म विद डायरेक्शन फॉर डाइल्यूशन विद वार्म वाटर फॉर यूज. जो जैसे बीटाडीन का गागल है, लिस्टरीन का है आपका, या क्लोरहेक्सिडीन, ये सारे गागल्स आते हैं. माउथ वॉशेस भी आपकी अलग कैटेगरी है, माउथ वॉशेस की भी कुछ प्रिपरेशंस होती हैं. उनमें गागल्स में क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, हमने 10 ml लिया और उसको वापस डाइल्यूट करते हैं, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स वाटर से डाइल्यूट कर रहे हैं, उसके बाद यूज करते हैं. एक फिनॉल ग्लिसरीन गागल का एग्जांपल है. The formula is phenol glycerin 5 ml, amaranth solution 1 ml, and we are going to add purified water up to 100 ml. They all are true solutions. The method of preparation क्या होगा? They are prepared by mixing amaranth solution with small quantity of water
and adding phenol glycerine to it. एमरेंथ को पहले वाटर की स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व करने के बाद उसमें फिनॉल ग्लिसरीन को ऐड करना है एंड मिक्स अप द फाइनल वॉल्यूम विथ वाटर. लेबल इंफॉर्मेशन. जो भी आपकी डोजेस फॉर्म है, लेबल उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बनाना, दैट इज प्रिपरेशन. सही बना है कि नहीं, इट इज इवैल्यूएशन पार्ट. देन पैकेजिंग, सुटेबल कंटेनर में उसको पैक करना, जैसे यहाँ पे बीटाडीन की पैकेजिंग आपको दिख रही है, प्लास्टिक कंटेनर में है, और उस पैक के ऊपर लेबल. लेबल जो उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है. उस इंफॉर्मेशन में, उस लेबल में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड नॉट टू बी swallowed. गागल्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली ही यूज कर सकते हैं टिल थ्रोट इन्फेक्शन, एंड इट शुड नॉट बी swallowed. इसको swallow नहीं कर सकते. The next is mouthwash. माउथ वॉश को थ्रोट तक नहीं ले जाना है. आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग द गागल इन द माउथ वॉश. इसको थ्रोट तक नहीं ले जाना है, सिर्फ डीओडराइज बक्कल कैविटी. दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस प्रिपरेशंस विद प्लीजेंट टेस्ट टू क्लीन, डीओडराइज दी बक्कल कैविटी. सिर्फ हमारी बक्कल कैविटी को क्लीन करना हो या डीओडराइज करना हो तो हम माउथ वॉशेस को यूज करते हैं. माउथ वॉशेस हैव रिफ्रेशिंग, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है. देयर इज वन फॉर्मूला टू प्रिपेयर माउथ वॉश. The name of the mouthwash is zinc sulfate zinc chloride mouthwash. The contents are written here in front of you. Zinc sulfate is used in quantity 20 grams. Zinc chloride is used as 10 gram. Dilute HCl is used in 10 ml. Compound tetrazine solution is 10 ml. And chloroform water is required to produce the total volume up to 1 liter. Method of preparation. Dissolve zinc sulfate and zinc chloride in small quantity of chloroform water. जिंक सल्फेट को और जिंक क्लोराइड को, जो यहाँ पे लिखा है जिंक सल्फेट 20 ग्राम, जिंक क्लोराइड 10 ग्राम, इसको सबसे पहले क्लोरोफॉर्म वाटर की थोड़ी क्वांटिटी, 1000 हमें टोटल लेके चलना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी 100 ml या 200 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर में डिसॉल्व कर लिया. इस सोल्यूशन में जब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए, वी हैव टू ऐड डाइल्यूट HCl 10 ml एंड कंपाउंड टेट्राजीन सोल्यूशन. इसमें डाइल्यूट HCl को और कंपाउंड टेट्राजीन सोल्यूशन को ऐड करना है. एंड जब पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपका जो भी सॉलिड डाला हुआ है हमने डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो जाए, देन क्लोरोफॉर्म वाटर से वॉल्यूम को मेकअप करना है. द लेबल इज इंपॉर्टेंट. लेबल इंस्ट्रक्शन इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी स्वेलोड इन लार्ज क्वांटिटी. पैकेजिंग कैसे करते हैं? नैरो माउथ बॉटल में, फ्लूटेड बॉटल है, नैरो माउथ बॉटल में ही हम माउथ वॉश को नॉर्मली पैक करते हैं. Now the next monophasic preparation is throat paint. Throat means till throat we are going to treat the infection of any kind of infection till throat. And paint, as you are aware about the paint जो हम नॉर्मल वॉल पे भी लगाते हैं या कहीं और हम किसी पर्टिकुलर फर्नीचर को या किसी इंस्ट्रूमेंट को पेंट कर रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल इज जो सॉल्वेंट है उसमें हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को समटाइम्स कलर प्रोड्यूसिंग और अदर डिजायरेबल इंग्रेडिएंट डिसॉल्व किया. जिस वक्त अप्लाई करते हैं दैट इज वेट, एंड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इवेपोरेशन और वोलेटिलाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट एक लेयर पीछे रह जाती है. द सेम मैकेनिज्म इज हियर फॉर थ्रोट पेंट. एक विस्कस प्रिपरेशन है, as it is written here also. Throat paints are viscous preparation. It is used for mouth and throat infection. ये एक viscous preparation है जो mouth infection या throat infection को ठीक करने के लिए या रिमूव करने के लिए या प्रिवेंटिव वे में भी, लाइक पहले से कोई सोर हुआ है, हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं थ्रोट या माउथ इन्फेक्शन को, तो थ्रोट पेंट्स यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है. तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन थ्रोट पेंट का एक सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. ग्लिसरीन किसी भी थ्रोट पेंट का सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. रीजन क्या है इसका? इसके रीजंस में द फर्स्ट रीजन इज जब हम ओरल म्यूकोसा में अप्लाई कर रहे हैं, इट हैज टू बी पैलेटेबल. जो टेस्ट आएगा, टेस्ट ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट है टंग में, तो जो टेस्ट है वो पैलेटेबल, प्लीजेंट, एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो ग्लिसरीन का एक स्वीट टेस्ट आता है
इसीलिए ग्लिसरीन को यूज करते हैं। सेकेंडली विस्कोसिटी एनहेंसिंग एजेंट भी है ग्लिसरीन, विस्कस प्रिपरेशन को बनाने में यूज होगा, विस्कस है। थर्ड वन इज ह्यूमिक्टेंट, ये वाटर को रिटेन करके एब्जॉर्ब करके रखता है। तो एक ह्यूमिक्टेंट भी है जो ड्राई नहीं होने देगा, जो थ्रोट पेंट लगने के बाद आफ्टर वोलेटिलाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट प्रिपरेशन को ड्राई होने नहीं देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन से एडहेर होकर के लॉन्गर टाइम तक एडहेरेंस प्रोवाइड करता है। और जब लॉन्गर टाइम तक एडहेरेंस प्रोवाइड करेगा तो मेडिकामेंट का जो एक्शन है वो भी प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक मिलेगा। जो मेडिकामेंट का एक्शन है वो भी प्रोलॉन्ग्ड है और ऑब्वियसली इट इम्पार्ट्स द स्वीट टेस्ट एज आई टोल्ड यू। द फॉर्मूला, वन कॉमन फॉर्मूला पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन थ्रोट पेंट का जो कॉमन फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पोटेशियम आयोडाइड 2.5 ग्राम, आयोडीन 1.25 ग्राम, अल्कोहल 4 ml, वाटर 2.5 ml। पिपरमिंट ऑयल थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन मिलेगा क्योंकि हम ओरल कैविटी में यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड इन 0.4 ml। एंड ग्लिसरीन इज यूज्ड एज अ बेस, लार्ज क्वांटिटी में ग्लिसरीन को यूज करते हैं टू प्रिपेयर द होल वॉल्यूम अप टू 100 ml। Now, method of preparation: dissolve potassium iodide in water, add iodine and stir until completely dissolved। पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन अकेले वाटर में कभी सॉल्युबल नहीं होता है, ये डाई या ट्राई टेट्रा आयोडेट्स के फॉर्म में ही सॉल्युबल होता है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिसॉल्व आयोडीन इन वाटर, ऑलवेज पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड। पिपरमिंट ऑयल, अल्कोहल, इनको भी आपस में डिसॉल्व करना है। पेपरमिंट ऑयल ऑयली प्रिपरेशन है तो वाटर में सॉल्युबल तो होगा नहीं, इसको पहले अल्कोहल में डिसॉल्व करना है, फिर आयोडीन का जो सोल्यूशन ऊपर बना रखा है उसमें ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर पेंट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड मेक अप द वॉल्यूम विद ग्लिसरीन। पेंट को अप्लाई करने के लिए एक सॉफ्ट ब्रश भी प्रोवाइडेड होता है। जब हम डिस्पेंस करते हैं पेंट को तो एक सॉफ्ट ब्रश के साथ ही ये प्रोवाइडेड है। लेवल ऑफ पेंट इज थ्रोट पेंट इज इंक्लूड्स फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इसको बस सॉफ्ट ब्रश से हमने अफेक्टेड एरिया पे लगा दिया और छोड़ दिया। एंड द पैकेजिंग, अ वाइड माउथ फ्लूटेड लाइट रेजिस्टेंस ग्लास बॉटल इज यूज टू पैक थ्रोट पेंट। Next preparation is liquid dosage form monophasic preparation is ear drop. Ear drop, as name indicates, is used for instillation into ear cavity. हमें ईयर कैविटी में डालने के लिए ईयर ड्रॉप को यूज करते हैं। मेनली कब डालते हैं ईयर कैविटी में? समटाइम्स वैक्स को अगर हमें डिसॉल्व करना है, कुछ ड्रग जो वैक्स डिसॉल्विंग ड्रग है उनको यूज करके डाल सकते हैं, या कोई सिक्रीशन है, कोई इन्फेक्शन हो गया है ईयर में और आपकी आउटर एयर एरियाज में, उस केस में हम ईयर ड्रॉप को यूज कर लेते हैं। So ear drops are liquid preparations that is meant for installation into the ear. In these preparations, the drug is usually dissolved in a suitable solvent such as alcohol or polyethylene glycol, commonly known as PEG. PEG में alcohol में dissolve करके drug दे दिया। Aqueous vehicle is usually not preferred as ear secretions are fatty in nature. Ear secretion खुद fatty nature का है तो aqueous vehicle को हम normally use नहीं करते हैं। और वाटर डज नॉट मिक्स, क्योंकि वैक्स है, फैटी है, तो उसके साथ एक्वस व्हीकल मिक्स नहीं होगा। दिस इज द फॉर्मूला, वन फॉर्मूला टू प्रिपेयर ईयर ड्रॉप: क्लोराम्फेनिकोल 5 ग्राम एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, क्वांटिटी सफिशिएंट टू प्रिपेयर 100 ml। करना कैसे है, बनाने का मेथड क्या है? बहुत ही सिंपल है, दोनों को आपस में डिसॉल्व कर लो। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीजी लेना है, स्मॉल क्वांटिटी, नॉट 100 ml। स्मॉल क्वांटिटी लेने के बाद 5 ग्राम ऑफ क्लोराम्फेनिकोल उसमें डिसॉल्व करना है। शेक वेल until completely dissolves, until chloramphenicol completely dissolves, and at last step you have to make up the volume up to 100 ml with PEG। थोड़ी सी क्वांटिटी में डिसॉल्व करिए, पूरा डिसॉल्व हो जाए तो PEG से 100 ml वॉल्यूम मेकअप करना है। Now next monophasic dosage form is nasal drops. Nasal drop, as name says, is used for instillation into the nostrils or nasal areas, nasal cavities with the help of dropper. Nasobion इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने डायग्राम में रखा भी है। नेजल ड्रॉप, नेजल या नोस्ट्रल्स के थ्रू जब ड्रॉप्स को हम डाल रहे हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ वाटर, दे आर nasal drops. Nasal drops, as contrast to the eardrop, are aqueous, mainly aqueous base. They have aqueous base. Aqueous vehicle है जिसमें कि हमने suitable ड्रग को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व किया है।
Nasal drops are generally formulated to resemble nasal secretions as closely as possible. जो nasal secretion है, nasal mucus है, उसका जो secretion है, उसी की तरह नेजल प्रिपरेशन बनाते हैं, जो उसका पीएच है, जो विस्कोसिटी है, कंसिस्टेंसी है. बफर को यूज करके पीएच हम मेंटेन करते हैं 5.5 टू 7.5 की रेंज में. इवन द विस्कोसिटी इज मेंटेन्ड एज नियरली इक्वल्स टू द विस्कोसिटी ऑफ नेजल सिक्रीशंस. इस वन फॉर्मूला एफेड्रिन नेजल ड्रॉप का फॉर्मूला हमारे सामने है. एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 ग्राम, क्लोरोब्यूटॉल 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम ऑन प्यूरिफाइड वाटर अप टू 100 ml. बनाने का मेथड भी होमोजीनियस डोजेस फॉर्म के बनाने का मेथड बिल्कुल कॉमन है. जितनी भी सॉलिड इंग्रेडिएंट से सुटेबली वे करने के बाद, एक डिजायर्ड साइज को सुटेबली वे करने के बाद मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेहिकल में हमने डिसॉल्व करना है, सॉल्युबलाइज करना है. आफ्टर कंप्लीट सॉल्युबलाइजेशन add sufficient water to make up the volume. Final solution का जो final volume है वो make up होता है after adding sufficient quantity of water. Next is enemas. Enemas rectal area में insert करने वाली preparation से, इसके बारे में एक आपको वीडियो, सपोजिटरी का वीडियो मैंने शेयर कर रखा है. दिस इज लाइक, यहाँ पे एग्जांपल भी है, ग्लिसरीन ग्लिसरोजिलेटिन एनीमा का एग्जांपल है. सेमी सॉलिड या लिक्विड दोनों ही प्रिपरेशन आती है, तो ऑब्वियसली होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म का भी एग्जांपल है एनीमा, जो रेक्टल एरिया में इंसर्ट करते हैं मेनली टू इवैक्यूएट बॉवल. स्पेशली कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए या सर्जरी के जस्ट बिफोर हम एम्प्टी करते हैं, जो आपका गैस्ट्रो ट्रैक्ट है, जो रेक्टल एरिया है, उसको खाली करने के लिए, एम्प्टाई करने के लिए हम एनीमास को यूज करते हैं. The formula is written here. Alcohol 50%, glycerine 10 ml, soft soap 10 ml. यही मेन आपका एक्शन प्रोवाइड करता है. एंड कोकोआ बटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू 100 ml. एक एनीमा का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है. एंड हियर इज, आप देख सकते हो कि सोडियम फॉस्फेट्स एनीमा है, ब्रिटिश बीपी फार्माकोपिया का, जिसको कि यूज करते हैं टू इवैक्यूएट द रेक्टम. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एनीमा को बनाने का जो मेथड है, फ्यूजन मेथड वाज यूज्ड मेनली टू प्रिपेयर एनीमास. बेस को मेल्ट करना है, ड्रग उसमें प्रॉपरली डिसॉल्व करेंगे. मिक्सचर को फिर हीट, मेल्ट किया है तो ऑब्वियसली हीट प्रोवाइड करके मेल्ट किया है, तो उसको हटा करके हमने मोल्ड्स में इसको पोर किया. मेल्टेड जो आपका मास है वो कॉन्जील हो जाएगा और आपको सेमी सॉलिड एनीमा मिल जाएगा. एंड इफ रूम टेम्परेचर पे इसकी कंसिस्टेंसी आपकी लिक्विड ही है, तो यू विल गेट लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ एनीमा. पैकेजिंग, दे मस्ट बी पैकेज्ड सच दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. अगर हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से, तो पैकेजिंग ऐसे करनी है कि एक एक यूनिट अलग अलग निकले. एंड इफ इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन, तो वन डोज सिंगल यूज का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा एक लिक्विड प्रिपरेशन में फिल्ड होगा. द इम्पॉर्टेंट लेबलिंग इज स्टोर इन अ कूल प्लेस एंड नॉट टू बी टेकन ओरली. The important level criteria for enema is store in a cold place, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाता है. तो अगर हम नॉर्मल कूल प्लेस पे नहीं रखेंगे तो सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन है एनीमा की वो मेल्ट कर जाएगी. And obviously the liquid is also liquid enemas are also stored in a cool place and they're not to be taken orally. Thank you very much for listening liquid doses form part 1. If you have any query related to the segment, you can contact on these numbers or with this email ID. Thank you.